Hello everyone, welcome back in Rai Smart Classes. Today we will solve exercise of NCERT Class 10 Science Chemical Reactions and Equations Chapter 1. I will try to clarify each question in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. Today we will solve question 1 to question 10. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers of each question for offline revision and practice. Now let us start the exercise. Exercise questions. Question 1. क्या कह रहा है? Which of the statements about the reaction below are incorrect? ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इस रिएक्शन में कौन सा इनकरेक्ट है? क्या हमारा रिएक्शन है 2PbO. PbO मतलब lead oxide plus carbon that gives lead Pb plus CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. तो स्टेटमेंट कर रहा है कि इस रिएक्शन में कौन सा स्टेटमेंट गलत है. क्या क्या है? lead is getting reduced, carbon dioxide is getting oxidized, carbon is getting oxidized, lead oxide is getting reduced. ये ऑप्शंस दिए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट है. तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है? ए एंड बी. क्या? lead is getting reduced, carbon dioxide is getting oxidized. क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड. क्या हो रहा है यहाँ पे? lead ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रहा है. ये में ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रहा है. तो ऑक्सीजन जो रिमूवल ऑक्सीजन मतलब रिमूवल ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन हो गया. दैट इज और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो क्या है? रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम lead इज एडेड टू एलिमेंट ऑफ कार्बन. कार्बन के साथ ऐड हो रहा है. तो इसमें क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है इस रिएक्शन में स्टेटमेंट lead is getting reduced and carbon dioxide is getting oxidized, that is incorrect. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते. क्वेश्चन नंबर 2. क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है जो रिएक्शन है फेरस ऑक्साइड प्लस 2Al दैट गिव्स अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन Fe. The above reaction is an example of combination reaction, double displacement reaction, decomposition reaction, displacement reaction. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फेरस ऑक्साइड और अल्युमिनियम का रिएक्शन हो रहा है. तो जो क्या है? अल्युमिनियम फेरस Fe को डिस्प्लेस कर दे रहा है. मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये displacement reaction. The oxygen from ferrous oxide is getting displaced to the aluminum metal to form aluminum oxide. Aluminum oxide बन रहा है. In this reaction aluminum is more reactive than iron. जो aluminum होता है वो क्या है? more reactive है, इसलिए displace कर दे रहा है. Therefore aluminum is displaced iron from its oxide. This type of chemical reaction in which one element displaced another is क्या कहता है? Displacement reaction. Here less reactive metal is displaced by more reactive. Displacement में क्या होता है? जो less reactive element होता है, तो यहाँ पे क्या है? Aluminium more reactive than iron. इसलिए aluminium क्या कर रहा है? ये iron को
डिस्प्लेस कर दे रहा है और इसके जगह अल्युमिनियम आ जा रहा है। और क्या हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Since one time displacement occurs, therefore it is called a single displacement reaction. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid is added to fillings? Tick the correct answer. क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फिलिंग, क्या हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड? Second, chlorine gas and iron hydroxide are produced. No reaction take place and iron salt and water are produced. क्या होता है कि what happened, hydrochloric acid is added to iron filling, tick the correct answer, मतलब हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड are produced. Chlorine from hydrogen chloride is displaced by the iron filling to undergo the following reaction. क्या होगा, HCl और आयरन का जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ खुद आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आयरन क्लोराइड, और यहाँ हाइड्रोजन बच जाएगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स कि वन इज करेक्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। दिस इज और ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके और आयरन वो आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? तो सबसे पहले तो बैलेंस इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन वो है जो इक्वेशन में जितना रिएक्टेंट साइड में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी होते हैं, दोनों तरफ बराबर होते हैं। क्यों बैलेंस किया जाता है? क्योंकि बैलेंसिंग केमिकल इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन शुड ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Balancing the chemical equation has no defined method and is purely trial and error attempt. तो जो बैलेंसिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि नाइदर एटम हम क्रिएट कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो भी रिएक्शन में भाग लेता है, दैट मीन्स कि जितना एटम मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही एटम्स और मॉलिक्यूल जो भी प्रोडक्ट में बनेंगे। तो इसका आंसर क्या है? अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज द वन इन विच number of different atoms on both the reactant and product sides are equal. Balancing chemical equation is necessary for the reaction should obey the law of conservation of energy. Balancing the chemical equation has no defined method and is purely a trial and error attempt. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्या? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। जो हमारे को ये स्टेटमेंट दिया है इसको केमिकल इक्वेशन में लिखना है और नाउ बैलेंस करना है। तो फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका
अनबैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन गैस H2 हो गया कंबाइन विथ नाइट्रोजन N2 हो गया, दैट गिव्स NH3। तो ये हो गया H2 प्लस N2 हमने लिख लिया, दैट गिव्स अमोनिया। मतलब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से काम हुआ तो क्या मिला, अमोनिया। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जितना है उतना इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे H2 2 है, यहाँ मतलब हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 है तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम अगर 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। अब क्या है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गया, दैट मीन्स 3H2 प्लस N2 दैट गिव्स 2NH3, दैट इज अ बैलेंस इक्वेशन। ऐसे ही नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S रिएक्ट किससे हो रहा है, एयर से, मतलब ऑक्सीजन, दैट गिव्स क्या दे रहा है, वाटर H2O देन एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। दैट इज हमारा जो स्टेटमेंट है वो इक्वेशन फॉर्म में आ गया, हमने फॉर्मूला से लिख दिया। अनबैलेंस है, अभी ये फिर हम देखेंगे कि कितने कितने क्या है, रिएक्टेंट साइड में जितने उतने प्रोडक्ट में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं H2 2 है, यहाँ भी 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, 3 है। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ 2H2S कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2HTS हो जाएगा, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हम अगर 2 कर देते हैं तो यहाँ 4 हो गया। अब सल्फर 2 है, तो हम यहाँ पे सल्फर में 2 कर देंगे तो यहाँ सल्फर 2 हो जाएगा। वैसे ही अब हमारा क्या है, हाइड्रोजन और सल्फर बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। और प्रोडक्ट साइड में हमने 2 लिया था तो 2 यहाँ पे है ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 इंटू 2 4, मतलब ये भी बैलेंस हो गया। मतलब 2H2S प्लस 3O2 दैट गिव्स 2H2O प्लस 2SO2, दैट इज अ बैलेंस इक्वेशन। वैसे ही नेक्स्ट सी, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन रखेंगे। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट किससे कर रहा है, अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, दैट गिव्स क्या दे रहा है, अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। हमने अनबैलेंस इक्वेशन लिख लिया। अब अनबैलेंस को बैलेंस करेंगे तो हम सबसे पहले रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में देखेंगे कि क्या क्या कितना है। तो यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 3 है। तो सबसे पहले क्या है, हम क्लोरीन को यहाँ बैलेंस करना है। तो 3 है मीन्स अगर हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो 3BaCl2 हो जाएगा, और तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं तो 2AlCl3 हो जाएगा। तो 3Cl2 मतलब 6 हो गया, और ये भी क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या है, अल्युमिनियम हमारा 2 है, तो अल्युमिनियम भी यहाँ हमारा 2 आ गया। अब क्या हमारे को करना है, SO4, SO4 कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है। तो SO4 की अगर हम 3BaSO4 को 3 कर देंगे तो हमारा SO4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे 3 बेरियम इधर है, 3 बेरियम इधर है, 6 क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में है, 6 क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में भी है।
2 एल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में है, 2 एल्युमिनियम प्रोडक्ट साइड में भी है। 3 सल्फेट SO4 इधर है रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे भी SO4 3 है, तो दैट मीन्स कि इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो सबसे पहले हमें अनबैलेंस इक्वेशन लिखना होता है, उसके बाद रिएक्टेंट साइड में कितने एटम मॉलिक्यूल उसके पड़े हुए हैं और प्रोडक्ट साइड उसी हिसाब से इसको जो बोलते हैं हम जो लगा रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हम कोफिशिएंट यूज करते हैं, मतलब नंबर्स यूज करते हैं, न्यूमरल्स के थ्रू हम इसको बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम मेटल क्या है, के पोटेशियम की सिंबल है, तो के पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर H2O लिख लिया, के प्लस H2O दैट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस H2। अब यहाँ देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं है, तो हमारे पास क्या है, पोटेशियम 1 है, यहाँ भी पोटेशियम 1 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 1 3 है रिएक्टेंट साइड में। अब ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हमारे को क्या ज़्यादा मिल रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अगर हम इसको 2H2O कर देते हैं, तो 2H2O कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H2 यहाँ है और यहाँ भी 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 H2 हो जाएगा और यहाँ भी 2H हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ 4 हो गया। लेकिन अब क्या बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया पोटेशियम, तो हमें 2 पोटेशियम भी करना पड़ेगा। अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2K यहाँ पे है, 2K यहाँ पे हो गया, 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन दैट मीन्स यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो दैट इज बैलेंस इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को इक्वेशन में बदलना है, मतलब अनबैलेंस लिख लेना है। उसके बाद जो रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में थ्रू न्यूमरल्स हमें उसको बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, हमारे को केमिकल इक्वेशन दिए हुए हैं और अब यहाँ पे डायरेक्ट हमारे को अनबैलेंस इक्वेशन दिए हुए हैं, अब बैलेंस करना है। तो ऑलरेडी हमें इक्वेशन मिला हुआ है, तो हम इस फर्स्ट HNO3 प्लस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है और 2, हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन क्या, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन टोटल इसमें 2 है। यहाँ पे जो है NO3 सिंगल है, नाइट्रेट यहाँ 2 है, कैल्शियम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हम अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन कर देते हैं तो 2HNO3 कर देंगे, तो 2HNO3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमारा यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन नाइट्रेट भी 2 हो गया। अब देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम 1 है, तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 और है और 2 4 हो गए, तो यहाँ पे हमारे को हाइड्रोजन कितने, 2, तो हमको H2O में भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 2HNO3 प्लस COH होल ट्वाइस दैट गिव्स CONH3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O, दैट इज अ बैलेंस इक्वेशन। तो हमारे को ऑलरेडी अनबैलेंस इक्वेशन मिले हैं, उसे हमें बैलेंस करना है, तो हम ये न्यूमरल से रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं उतने ही हम प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करेंगे। वैसे ही B NOH प्लस H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज सोडियम सल्फेट NH2।
अब यहाँ पे क्या है, सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, सल्फेट सिंगल है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। तो सबसे पहले हमें क्या है, अगर हम 2 कर देते हैं तो 2NOH कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2NOH कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2NOH से NO2 आ गया। अब क्या है, सोडियम बैलेंस हो गया। अब H2SO4 है, तो यहाँ हम 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, तो अब क्या हो गया, H यहाँ 2 1 3, तो मतलब 2 और 2 4, तो यहाँ भी 2 NOH हो गया, तो मतलब क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ 4, और यहाँ भी 2 × 2 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। 2 सोडियम यहाँ है, यहाँ भी Na2 2 सोडियम है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। यहाँ सल्फेट SO4 सिंगल है, प्रोडक्ट साइड में भी सिंगल है, दैट इज बैलेंस। नेक्स्ट ऐसे ही सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, दैट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो हमें अनबैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है, हमें फिर टैली करना है कि कौन कौन से आइटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हैं या नहीं है। तो इसमें क्या है, सोडियम सिंगल है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में भी सिंगल है। क्लोरीन सिंगल है, प्रोडक्ट साइड में भी सिंगल है। सिल्वर रिएक्टेंट साइड में भी सिंगल है, प्रोडक्ट साइड में भी सिंगल है। नाइट्रेट प्रोडक्ट साइड में भी सिंगल है और रिएक्टेंट साइड में भी सिंगल है और प्रोडक्ट, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। वैसे ही नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दैट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड HCl। अब फिर इसमें देखेंगे क्या है, बेरियम कितना है, रिएक्टेंट साइड में सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है प्रोडक्ट साइड में। क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन 1 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 HCl कर देंगे तो क्लोरीन 2 हो जाएगा। अब क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, सल्फेट सिंगल है, मतलब BaCl2 प्लस H2SO4, दैट गिव्स BaSO4 plus 2HCl, that is a balance equation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें यहाँ पे फिर क्या हुआ है, नेम दिया हुआ है, मतलब वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या है, वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इक्वेशन फॉर्म में, इनके केमिकल फॉर्मूला फॉर्म में लिखना होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया CO2, दैट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले हमने ये लिख लिया अनबैलेंस हो, अब इसको देखेंगे तो ये हमने अनबैलेंस, हमने यहाँ बैलेंस लिख दिया है। हमने 2CaOH होल ट्वाइस प्लस 2CO2, दैट गिव्स 2CaCO3 प्लस 2H2O, दैट इज अ बैलेंस, क्योंकि यहाँ 2 कैल्शियम है, यहाँ भी 2 कैल्शियम है। रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोक्साइड है, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोक्साइड, मतलब 4, मतलब हाइड्रोजन 4 है, तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2, यहाँ 2 2 4 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4, तो यहाँ पे कितने 2 हो गए, और यहाँ 3 × 2 6 हो गए, तो 6 + 2 8, मतलब यहाँ भी रिएक्टेंट साइड में भी 8 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 8 ऑक्सीजन है। अब कार्बन, कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 कार्बन है, दैट इज बैलेंस। वैसे सेकंड जिंक, तो जिंक मेटल क्या, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, दैट गिव्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। हमने पहले अनबैलेंस लिख लिया, अब अनबैलेंस लिख के फिर हम बैलेंस करेंगे।
तो बैलेंस क्या होगा, Zn प्लस 2AgNO3 दैट गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। अब यहाँ पे क्या है, जिंक सिंगल है, यहाँ जिंक सिंगल है, नाइट्रेट 2 है, NO3 2 है, यहाँ भी NO3 2 हो गया, सिल्वर 2 है, यहाँ भी सिल्वर 2 हो गया, दैट इज बैलेंस। वैसे ही एल्युमिनियम तो Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 दैट गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। अब हमने अनबैलेंस लिख लिया, फिर बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 2Al प्लस 3CuCl2 दैट गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu। अब यहाँ 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ 2 एल्युमिनियम प्रोडक्ट साइड में हो गया, रिएक्टेंट साइड में 3 कॉपर हमने कर दिया तो प्रोडक्ट साइड में भी 3 कॉपर हो गए, क्लोरीन 6 हो गए, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट में भी क्लोरीन 6 हो गए, दैट इज बैलेंस। वैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 दैट गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। हमने पहले क्या करना है, अनबैलेंस लिखना है, देन बैलेंस करना है, तो हमने पहले अनबैलेंस ऐसे लिख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा जो केमिकल है वो वेरी कर रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो वेरी करेगा तो हम न्यूमरल से मल्टीप्लाई करके उसको वेरी, यहाँ पे हमने क्या किया, BaCl2 प्लस K2SO4 दैट गिव्स BaSO4 प्लस 2KCl, हमने यहाँ पे 2 कर दिया, तो क्या हो गया, बेरियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया, पोटेशियम रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया, सल्फेट रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, दैट इज बैलेंस। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, अनबैलेंस इक्वेशन लिखना होता है, देन उसके बाद हम रिएक्टेंट साइड में एटम्स को मिलाते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट साइड में दोनों को इक्वल करते हैं, दैट इज बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Write a balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction of each case। क्या कर रहे हैं कि जो केमिकल इक्वेशन यहाँ दिए हुए हैं इनको बैलेंस कीजिए, और ये जो इक्वेशन है इसमें किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें KBr प्लस KBr क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम, तो ये क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम आयोडाइड हुआ है, तो पोटेशियम आयोडाइड और क्या है, बेरियम ब्रोमाइड। तब इसको हमें पहले तो बैलेंस करना होगा, तो क्या है, पोटेशियम 1 है, यहाँ पोटेशियम प्रोडक्ट में भी 1, ब्रोमीन 1 है, यहाँ ब्रोमीन 2 है, तो हम यहाँ अगर 2 कर देते हैं तो 2 क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमीन हो जाएगा, ये बैलेंस होगा, तो यहाँ भी जो रिएक्टेंट में 2 पोटेशियम है ये भी 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, तो 2 KBr प्लस BaI2 दैट गिव्स 2 Ki प्लस BaBr2। तब इसमें क्या हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड से पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है, और बेरियम आयोडाइड से क्या बन रहा है, बेरियम ब्रोमाइड, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दैट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट दैट गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन सबसे पहले देखेंगे बैलेंस है नहीं, तो जिंक सिंगल रिएक्टेंट में है, यहाँ भी सिंगल है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन सिंगल है, प्रोडक्ट साइड में भी सिंगल, दैट इज इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक कार्बोनेट दैट गिव्स ZnO प्लस CO2, मतलब डिकम्पोज हो रहा है, जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन दैट इज अ डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, H2 प्लस Cl दैट गिव्स HCl, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है और Cl सिंगल है, तो हाइड्रोजन है, तो H2 प्लस Cl2 हो जाएगा, H2
plus Cl2 that gives 2HCl. यहाँ पे Cl2 होगा 2HCl, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ Cl2 बाई मिस्टेक Cl लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। दैट इक्वेशन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इक्वेशन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे ही मैग्नीशियम Mg प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट गिव्स MgCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। तो मैग्नीशियम सिंगल है, मैग्नीशियम सिंगल है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे 2HCl कर देंगे। तो 2HCl कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब Mg प्लस 2HCl दैट गिव्स MgCl2 प्लस H2। तो अब मैग्नीशियम बैलेंस हो गया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया 2-2 और क्लोरीन भी 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताना है। तो an endothermic reaction occurs when energy is absorbed from the surrounding in the form of heat। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होता है, जब वो एनर्जी रिएक्शन में लेता है, जस्ट लाइक हीट सराउंडिंग से अपने आप है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवोपरेशन, ये सराउंडिंग से क्या हीट लेता है। जैसे प्लांट क्या है, सराउंडिंग फोटोसिंथेसिस कब होता है, सनलाइट उस पर पड़ता है। वैसे आइस जब सराउंडिंग से हीट लेता है तो आइस पिघल के लिक्विड बन जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, एज फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवोपरेशन। वैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन in which energy is released from the system into the surrounding। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है, जैसे कि एक्सप्लोजन, जब बम फटता है तो आप देखते हैं गर्मी बाहर आती है। कंक्रीट की सेटिंग होती है जब, तो जो कंक्रीट की सेटिंग कब होती है, जो एनर्जी है वो रिलीज करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन, उसमें एनर्जी रिलीज होते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, क्यों, हमें क्या होता है, वी रिक्वायर एनर्जी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए हमें क्या है, एनर्जी की जरूरत है। तो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। हम जो एनर्जी लेते हैं वो कहाँ से, हम जो खाना खाते हैं उससे। द फूड मॉलिक्यूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज ब्रोकन इनटू क्या, सिंपलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं जब डाइजेशन होता है तो टूट के क्या, सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज में टूटते हैं। These substances come in contact with oxygen present in our body cell to form carbon dioxide and water along with certain amount of energy, that is a respiration process। जो ग्लूकोज जब हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके जब कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ के साथ सम एनर्जी भी रिलीज करता है। तो रेस्पिरेशन मतलब प्रोसेस, जब ये इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस।
सिंस द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो एनर्जी है वो किस में, हीट, वो किस लिए होता है, दैट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर है। दैट मीन्स द रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ, क्योंकि एनर्जी रिलीज किया। तो हमारा जो इक्वेशन, द रिएक्शन टेक प्लेस, that is a C6H12O6, that is glucose in contact with oxygen 6CO2, that gives carbon dioxide plus hydrogen and energy। तो रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ये जब हम खाते हैं और जो स्मॉल टुकड़ों में जब होता है, तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और इसके साथ एनर्जी रिलीज करता है। तो जो एनर्जी, दैट इज अ रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो जब रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करता है, तो एनर्जी रिलीज करने से क्या फायदा होता है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन रहती है। तो इसीलिए हम रेस्पिरेशन को कंसीडर करते हैं दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम समझते हैं शायद आप समझ गए होंगे और आंसर्स भी लिख रहे होंगे, क्योंकि ऑफलाइन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है और जितना करेंगे तभी आपको ये याद रहेगा। रिटेन और ओरली जब आप अपने से, सिर्फ सुनने से नहीं, जब आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आज ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।